سوال کرتا ہوں کہ آپ کس ایمان سے عبادت کرتے ہیں، آپ کس ایمان سے خداوند کی حضوری میں جاتے ہیں، آپ کس ایمان سے اور کس توقع سے خدا کے ساتھ چلتے ہیں، اور کس طرح سے اس کی عبادت اور بندگی اور جے جے کار شیروں کی ماند کے اندر ایک ایماندار ہے، شیروں کی ماند کے یسوع کے بابرکت نام میں آپ کی سلامتی ہو، خداوند یسوع مسیح کا نام آپ کو مبارک ہو۔ آئیں کلام مقدس کی طرف چلتے ہیں، اور آج میں آپ کے سامنے جو بات رکھنے والا ہوں اس ویڈیو کے توسط سے، خداوند آپ کو ضرور اس بات سے برکت دے گا، بلیس کرے گا۔ اور یہ بات ہے عبادت کے تعلق سے کہ جب ہم خداوند کی ہمیشہ عبادت کرتے ہیں، ہمیشہ اس کی بندگی کرتے ہیں، اس کی جے جے کار کرتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ کبھی رائے گا نہیں ہوتا، بلکہ ایک وقت آتا ہے کہ ان دعاؤں کا، ان بندگیوں کا، ان عبادتوں کا، وہ جو عبادات آپ نے کی ہوتی ہیں مشکل پریشانی میں رہ کر یا سفر کر کے یا کسی بھی طرح سے، وہ آپ کی زندگی میں اس کا رزلٹ ایک نہ ایک دن آتا ہے۔ اس بات کو سامنے رکھنے کے لیے آپ کے میں نے کلام مقدس میں سے ایک ریفرنس لیا ہے، اور وہ ہے دانیل کی کتاب کے اندر سے۔ آپ دانیل کی کتاب جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر چھٹا باب جب ہم پڑھتے ہیں تو چھٹے باب کے اندر ہمیں ایک سٹوری ملتی ہے، جہاں پر اس وقت کے بادشاہ جو تھا نبوکت نظر، اس نے ایک مورت بنوائی، اور مورت بنانے کے بعد کہا گیا کہ اس کے آگے ہر شخص جو ہے وہ اس ملک کا اس کے آگے سجدہ کرے گا۔ حالانکہ یہ جو تھا، یہ پلان منصوبہ جو تھا، یہ دانیل کے مخالفت کرنے والے لوگوں نے بنایا تھا، اور جب یہ ساری قانون پاس ہو گیا تو اس وقت آپ سب اس سٹوری سے واقف ہیں کہ کس طرح سے خدا نے دانیل کو بچایا۔ لیکن میں آپ کے سامنے پڑھ کر چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں، اور یقین کرتا ہوں کہ ان باتوں سے، آج کس کلام سے، آج کس ویڈیو سے آپ برکت پائیں گے، اور خداوند آپ کے ایمان کو انکرج کرے گا، اور آپ جس بھی چرچ جاتے ہوں، جس بھی خادم کے ساتھ آپ کی رفاقت ہو، آپ ضرور اس کے ساتھ عبادت کرنے، بندگی کرنے میں ہمیشہ اپنا جو ہے وہ پہلا درجہ دینے کی کوشش کریں گے۔ کلام مقدس میں سے چھٹا باب اور اس کی جب ہم 14ویں آیت پڑھتے ہیں تو کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ جب بادشاہ نے باتیں سنی تو رنجیدہ ہوا۔ کون سی باتیں؟ اگر اوپر والی آیت ہم پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، تب انہوں نے بادشاہ کے حضور عرض کی کہ اے بادشاہ، یہ دانیل جو یہودا کے اسیروں میں سے ہے، یہ نہ تیری پرواہ کرتا ہے، نہ اس امتناعی فرمان کی جس پر تو نے دستخط کیے ہیں خاطر میں لاتا ہے، بلکہ ہر روز 3 بار دعا کرتا ہے۔ یہ الزام تھا، یا یہ بات تھی جس بات کی وجہ سے دانیل کو جو ہے وہ شیروں کی ماند کے اندر ڈالا گیا۔ اور جب بادشاہ کو یہ بات بتائی تو کلام میں لکھا ہے بادشاہ رنجیدہ ہوا، اور اس نے چاہا کہ وہ دانیل کو چھڑائے، اور سورج کے ڈوبنے تک اس کو چھڑانے میں کی کوشش کرتا رہا، لیکن کسی نہ کسی طرح سے اس کو بچانے کی کوشش کرتا، لیکن کیونکہ اس نے ہی وہ قانون پاس کیا ہوا تھا، اس لیے وہ زیادہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اور کلام کہتا ہے جب اس کو حکم دیا گیا کہ دانیل کو لایا جائے تو وہ دانیل کو لائے۔ 16ویں آیت پہ لکھا ہے، تب بادشاہ نے حکم دیا اور وہ دانیل کو لائے اور شیروں کی ماند میں ڈال دیا، پر بادشاہ نے دانیل سے کہا، جیسے ہی اس کو شیروں کی ماند میں ڈالا، بادشاہ نے دانیل سے کچھ کہا۔ اس بات کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ پہ غور سے سنیے گا۔ یہ بادشاہ دانیل سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے، تیرا خدا جس کی تو ہمیشہ عبادت کرتا ہے۔ یاد رکھے، جب آپ ہمیشہ اپنے خدا کی عبادت کرتے ہیں تو وہ عبادت آپ کی پہچان بھی ہوتا ہے، اور وہ عبادت آپ کے خدا کی پہچان بھی ہوتا ہے۔ بادشاہ کو اس کی دعائیہ زندگی، اس کی عبادت کے بارے میں پتا تھا، اور اسی لیے جب اس کو شیروں کی ماند میں ڈالا گیا تو اس سے پہلے کہ وہ اس کو چھوڑ دیا جاتا، دانیل نے کچھ کہہ کر اس کو لیو کیا یا چھوڑا۔ کلام کہتا ہے، بادشاہ نے کہا کہ جس کی تو ہمیشہ عبادت کرتا ہے تجھے چھڑائے گا۔ میں اکثر اس بات کو کہتا ہوں کہ اس کی عبادت، اس کی بندگی، اس کی دعائیں کرنا اتنا زبردست تھا کہ وہ بادشاہ پر بھی اثر انداز تھا۔ اس کی دعا کے وسیلہ سے، اس کی عبادت کے وسیلہ
से या उसकी इबादत करते हुए उसको देखते हुए बादशाह का ईमान भी इस कदर पुख्ता था कि उसने कहा कि जिस खुदा की तू इबादत करता है वो तुझे छुड़ाएगा, क्योंकि वो उसकी इबादत से वाकिफ था, वो उसकी दुआ से वाकिफ था, वो उसकी जिंदगी से वाकिफ था, वो उसके काम से वाकिफ था, वो उसकी सिंसेरिटी से वाकिफ था, वो इस बात से वाकिफ था कि ये खुदा के साथ सिंसेर होकर चलता है और किसी भी तरह से किसी चीज की परवाह नहीं करता। और इसी बात का उस पर इल्जाम भी है। दो बातों का इल्जाम, यहाँ पर दो बातें लिखी हैं, ना तेरी परवाह करता है ना उस अपनाई फरमान की, बल्कि उसकी इवज क्या करता है, ये हर रोज 3 बार दुआ करता है। ये उस पर इल्जाम था। और इस इल्जाम को जो है वो जब साबित हो गया उस पर, जब उसको देख लिया गया, तो कलाम कहता है उसको शेरों की मांद में डाल दिया गया। लेकिन जैसे ही शेरों की मांद में डाला, बादशाह ने बात उस पर जाहिर की, या इसको इस तरह से आप कह सकते हैं कि बादशाह ने तो तसल्ली दी, नबूवत की, प्रोफेसी की उसके लिए कि खुदावंद तेरा खुदा तुझे छुड़ाएगा। और आगे लिखा है, एक पत्थर लाकर उस मांद के मुंह पर रख दिया और बादशाह ने अपने और अपने अमीरों की मोहर उस पर कर दी, ताकि वह बात जो दानियल के हक में ठहराई गई थी तब्दील ना हो। यानी वो कानून जो बनाया गया था वो तब्दील ना हो, उस कानून को फॉलो किया जाए, उस कानून के अंदर रहकर ये सारा काम किया जाए। क्योंकि भले वो इबादत करता था, भले वो दुआ करता था, लेकिन उस कानून के मुताबिक, उस मुल्क के कानून के मुताबिक उसने जो वो कानून बना हुआ था, उसने वो कानून तोड़ा था। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, उसने मुल्क के कानून की और उसने बादशाह के कानून की, उसने जो उस कानून को ये सामने रखा कि ये कानून कहीं मेरी खुदा के कवानीन या खुदा के जो अहद हैं उनको ना तोड़ दे। उसने वो सजा को सामने रखते हुए, क्योंकि दानियल को ये पता था कि अगर मैं 3 दफा दुआ करूंगा, अगर मैं दोबारा से उसी रूटीन पे रहूंगा, अगर मैं दोबारा इबादत या बंदगी करता रहूंगा तो मुझे सजा हो जाएगी। ये दानियल को पता था। लेकिन दानियल को ये भी पता था कि जिसकी वो इबादत करता है वो छुड़ाने की कुदरत रखता है, वो जिंदा खुदा है, वो कुदरत वाला खुदा है। उसके सामने शेर या शेरों की मान कोई अहमियत नहीं रखती, ये दानियल को पता था। आज मैं आपसे यहाँ तक आने तक, सुनने तक अगर आपने सुना है, तो मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आप किस ईमान से इबादत करते हैं, आप किस ईमान से खुदावंद की हजूरी में जाते हैं, आप किस ईमान से और किस तवक्को से खुदा के साथ चलते हैं, और किस तरह से उसकी इबादत और बंदगी और जय जयकार करते हैं। क्या इस तरह का ईमान मेरे और आपके अंदर या हमारे अंदर है, जिस तरह का ईमान दानियल के अंदर था, जिस तरह का ईमान उसको शेरों की मान तक ले गया। आज का ईमानदार ये चाहता है कि मैं ईमान रखूं, लेकिन वो मेरा ईमान जो है वो हमेशा मेरे लिए हर तरह से स्मूथ जिंदगी गुजारने के लिए साबित हो, मेरे लिए किसी मुसीबत और परेशानी का बायस ना हो, बल्कि मैं उस ईमान को रखते हुए हमेशा अपनी जिंदगी को रिलैक्स गुजारूं, हमेशा उस जिंदगी को किसी भी मुसीबत परेशानी में ना गुजारूं, बल्कि उसमें कोई भी गम ना आए। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि दानियल का ईमान रखना, दानियल का इबादत करना, दानियल का 3 दिन रोज दुआ करना, दिन के अंदर 3 दफा दुआ करना, उसके लिए एक सजा का बायस बना और उसको शेरों की मान में ले गया। आगे जब हम पढ़ें तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, बादशाह जो है वो सारी रात सोया नहीं। कलाम कहता है उसने सारी रात फाका किया, उसने जो रोज उसकी रूटीन थी उस रूटीन से हटकर वो जागता रहा। कलाम कहता है उसकी नींद जाती रही, वो सो नहीं सका। और 19वीं आयत में लिखा है कि बादशाह सुबह सवेरे उठा और जल्दी से शेरों की मांद की तरफ चल पड़ा। ऐसा लगता है कि बादशाह का ईमान, याद रखें, जो था वो यही था कि उसको वो छुड़ाएगा। शेरों की मांद के अंदर एक ईमानदार है, शेरों की मांद के अंदर एक ईमानदार है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर शेरों की मांद के बाहर देखें तो नबूकदनजर भी एक ईमानदार की सूरत में खड़ा है, और उसने जो कहा था सारी रात उसका इंतजार किया, और सुबह उसको वो पूरा होने के लिए देखना चाहता था, और सुबह सवेरे वो उठा। अक्सर हम दानियल की ही बात करते हैं, लेकिन नबूकदनजर को कहीं भूल जाते हैं, उस बादशाह को भूल जाते हैं जिसने एक बड़ी महफिल के अंदर, कानून के सामने, लोगों के सामने, वजीरों के सामने ये नबूवत प्रोफेसी की कि खुदावंद तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है वो तुझे छुड़ाएगा। जब हम उस पर नजर करते हैं तो वो भी दानियल की तरह हमें ईमानदार ही नजर आता है। थैंक यू लॉर्ड। आगे क्या लिखा है, जब वो पहुंचा तो कलाम में लिखा है, जब मान पर पहुंचा तो गमनाक आवाज से दानियल को पुकारा। बादशाह ने दानियल को खिताब करके कहा, ए दानियल, देखें कैसा उसका टाइटल है,
किस तरह से दानियल को मुखातब किया जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपकी इबादत, आपका खुदा, आपकी पहचान। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। कलाम कहता है, ऐ दानियल जिंदा खुदा के बंदे, क्या तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है कादिर हुआ कि तुझे शेरों से छुड़ाए। क्या उसने अपनी कुदरत को जाहिर किया? क्या उसने अपनी कुदरत को तेरी जिंदगी में इस सूरत में जाहिर किया कि वो तुझे शेरों की मान से छुड़ाए? कलाम कहता है 21वीं आयत के अंदर, बादशाह के मुताबिक, हालेलुया, तब दानियल ने बादशाह से कहा, ऐ बादशाह अब तक जीता रहे। बादशाह को जवाब कैसा आया? अब तक जीता रहे, अब तक जीता रहे। मेरे खुदा ने अपना फरिश्ता भेजकर गवाही देता है दानियल कि किस तरह से शेरों ने मुझे नहीं खाया और किस तरह से मैं तुझे आवाज दे रहा हूं। कहता है मेरे खुदा ने, जिसकी तू बात कर रहा है कि मैं उसकी इबादत करता हूं, मैं उसकी बंदगी करता हूं, मैं उसकी जय जयकार करता हूं, मेरे खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजकर शेरों के मुंह बंद कर दिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। कलाम कहता है शेरों के मुंह बंद कर दिए और उन्होंने मुझे जरर नहीं पहुंचाया, क्योंकि मैं उसके हजूर बेगुनाह साबित हुआ। मैं उसके हजूर बेगुनाह साबित हुआ। उसकी हमेशा करने वाली दुआ, उसकी हमेशा करने वाली इबादत उसको गुनाह से पाक रखती थी। और याद रखें, ये सारी खुदा की कुदरत काम जब करती है तो यहाँ पर हमें साबित होता है कि हमारी जिंदगी भी उसके अंदर चेक लिस्ट के अंदर होती है। उसने कहा कि मैं क्या हुआ? मैं खुदा के हजूर बेगुनाह साबित हुआ। और कलाम कहता है बादशाह को, वो कहता है तेरे हजूर भी है बादशाह, मैंने खता नहीं की, मैं तेरे हजूर भी बेगुनाह हूँ और खुदा के हजूर भी बेगुनाह हूँ। मेरे अजीजों, खुदावन आपको बरकत दे और ब्लेस करे। इस दानियल की किताब को पढ़ के जब हम ईमान में आगे बढ़ने के लिए इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और खुदावन ने दानियल को जबरदस्त तरीके से खुदा की कुदरत से और अपने फरिश्ता को भेजकर, हालेलुया, उसने शेरों के मुंह को बंद कर दिया। आप जब इबादत करते हैं, बंदगी करते हैं, तो आप किस तरह से करते हैं? आपका ईमान कैसा है? आप किस तरह से खुदा के साथ चलते हैं? क्या इबादत को लेकर आप नॉर्मल हैं, या आप इबादत को लेकर एक अच्छे और खूबसूरत और सरगर्म कलीसिया के रुकन या खादम हो सकते हैं? अगर हैं तो खुदावंद आपको बरकत दे। जब आप शेरों की मान में जाएंगे और खुदा, आपका खुदा जिसकी आप हमेशा इबादत, बंदगी, जय जयकार दानियल की तरह करते हैं, बगैर किसी प्रेशर के, बगैर किसी हुक्म को सामने रखते हुए, बगैर किसी सजा को जो आपको उसके इवज मिल सकती है या उसके खतरात हो सकते हैं या उसका रिजल्ट हो सकता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपकी सोच ऐसी हो सकती है, लेकिन खुदावंद हमारा खुदा आज भी अपनी बंदगी, इबादत, जय जयकार करने वालों को बचाता, छुड़ाता और आजाद कर लेता है। खुदावंद आपको बरकत दे और ब्लेस करे। इस कलाम के वसीला से खुदावंद आपकी जिंदगियों को खुदावंद की हुजूरी में रेगुलर बनाए, कंटिन्यू बनाए और आपकी जिंदगी में भी दानियल की तरह मौजिज़ात हों। खुदावंद आपके साथ हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सपोर्ट करें। खुदावंद आपके साथ हो और आपको हमेशा ब्लेस रखे। यीशु के नाम